Good evening. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So, after examination of SBI Junior Associate Main, when we read the comments, so I feel that some people are upset, but others are over upset. And this is natural. When you have worked very hard, you have prepared very well, and the examination comes out of box, such type of feelings are normal. But at the same time, we have to reconcile and follow a right path for future exams. Sometimes out of anger we may adopt wrong path, and that may spoil our future exams also. Now some of the people are suggesting in that what is the use of reading current affair, it is better not to read it. Now this is a outburst on account of your performance in one of the examination, but it is not, it may not repeat in other exams. So if a person stop reading one particular subject, he may feel the heat in the next examination. So say in another examination, if quant comes tough, will you leave reading the quant? If another exam, if reasoning questions comes tough, is it wise to stop reading reasoning? Or that may be the case of English. So my advice is maintain a equilibrium and give equal time to all subjects. And in each exam is different. And in some exams, some paper may be tough. In another exam, another paper may be tough. In some exam, all sections may be tough. In some exams, all sections may be easy. So it is very difficult to foresee which section will help us to sail through. So a balanced candidate is a candidate who devotes the time in each and every subject. Always adopt a timetable where you are spending time for each and every subject, and maybe equally and maybe in proportion to your weakness or maybe as per your priorities. But ignoring any subject totally can be fatal in this competitive world. Sometimes we are underestimating our performance in a particular section, but when result comes, we feel that only due to this section we have sailed through. Some people are overestimating their performance in one section, but once result comes, they get lesser marks in that section. And unless they would have got good marks in the section which they were cursing, they might not have cleared the examination. So it is very difficult. What type of normalization will happen on a particular subject? What type of normalization will happen on a particular shift? We can't foresee. And that's why the wise approach is give equal time to every subject. And don't get over angry over a subject. It may be mistake of a examiner. It may be mistake of subject. It may be mistake of system. But don't punish yourself. Because if you will stop reading something, you may be at loss, not the other person, not your competitor, not the examiner. So for the wrongdoing of someone, don't punish yourself. This is my advice. Try to absorb the shock and settle your mind and focus on each and every subject. That is the right advice at right time. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. जब से SBI जूनियर एसोसिएट एग्ज़ाम हुए हैं, उसके बाद काफ़ी लोगों को शॉक लगा है, और वो ऑब्वियस है. इसको हम ये नहीं कह सकते कि क्यों लगा है. जब एक आदमी मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है और बहुत मन के साथ जाता है एग्ज़ाम में, और वहाँ पर आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उसका इस तरह का रिस्पांस बिल्कुल नेचुरल है. अल्टीमेटली हम सब ह्यूमन बीइंग हैं और हम बहुत उम्मीद के साथ किसी एग्ज़ाम में बैठते हैं,
और अगर कोई एग्ज़ामिनर ऐसा पेपर सेट कर देता है जो बिल्कुल ही सोच से परे है, तो नेचुरल है गुस्सा भी आता है, नेचुरल है हमें अजीब भी लगता है, और उस गुस्से के अंदर कई बार हमारे रिस्पॉन्सेज ऐसे होते हैं जो कल को हमें ही घातक साबित हो सकते हैं। जैसे मैं कई कमेंट्स पढ़ रहा था कि हमें जनरल अवेयरनेस पढ़ने की क्या ज़रूरत है, हमें करंट अफेयर पढ़ने की क्या ज़रूरत है, जब उसमें कुछ आना ही नहीं है उसको आगे से पढ़ना नहीं चाहिए। अब इस तरह की सोच कई बार नुकसान भी पहुंचा सकती है। एक एग्ज़ाम में हो सकता है करंट अफेयर आउट ऑफ बॉक्स आ गई, दूसरे एग्ज़ाम में हो सकता है क्वांट के क्वेश्चन आउट ऑफ बॉक्स आ जाए। अभी SBI PO के प्री में देखा कई शिफ्ट में क्वांट बहुत टफ आ गई थी, किसी में रीजनिंग भी टफ आ सकती है, किसी में इंग्लिश भी टफ आ सकती है। तो ये तो अनप्रेडिक्टेबल है। कई बार सारे सेक्शन आसान आ जाते हैं, कई बार सारे सेक्शन भी मुश्किल आ जाते हैं, कई बार कोई सेक्शन आसान आ जाता है, कई बार कोई सेक्शन टफ आ जाता है। उसके ऊपर आधार कर कर हम फ्यूचर एग्ज़ाम्स के लिए अपनी स्टडी प्लान नहीं बना सकते, क्योंकि इस एग्ज़ाम में जीके ख़राब हो गई तो आगे से हमने जीके नहीं पढ़नी है। हो सकता है अगले एग्ज़ाम में जीके बहुत ही आसान आ जाए और जो पढ़ के गए थे वो मोर्चा मार जाए, और जिन्होंने पढ़ना छोड़ दिया था वो अफसोस करे यार पूरा साल तो पढ़ते रहे, एग्ज़ाम से कुछ समय पहले छोड़ी थी और वही क्वेश्चन आ गए। इसलिए मेरा मानना ये है कि आप सभी विषयों पर इक्वल टाइम दें। जो भी गुस्सा आया है उस गुस्से में डिसीजन ना लें, क्योंकि वो घातक सिद्ध हो सकता है। जो एग्जामिनर का इसमें कोई नुकसान नहीं होने वाला है, सिस्टम का भी कोई नुकसान नहीं होने वाला है, सब्जेक्ट का भी कोई नुकसान नहीं होने वाला है। नुकसान अगर होगा तो कैंडिडेट का ही हो जाएगा। अगर वो किसी विषय की पढ़ाई छोड़ देता है और बाद में उस विषय का एग्ज़ाम आसान आ जाता है आने वाले दिनों में, जो इस साल के 5-6 एग्ज़ाम होने हैं, तो फिर वो रिपेंट करेगा मैंने ये मौका क्यों अपने हाथ से जाने दिया। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि अपना एक टाइम टेबल बनाओ, बैलेंस टाइम टेबल बनाओ, हर सब्जेक्ट को फोकस करो, जो हो गया सो हो गया, आगे की सुध लो। कोई बड़ी बात नहीं है जब रिज़ल्ट आए तो जिस सब्जेक्ट को आप सोच रहे थे कि ये मेरे लिए घातक सिद्ध हुआ, उसी की बदौलत आपको नौकरी मिल जाए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन बड़ी विचित्र चीज़ है। जिस सब्जेक्ट को आप समझ रहे हो मैं बहुत अच्छा करके आया हूँ, हो सकता है उसमें नंबर उतने ना आए जितने आप सोच रहे हैं, और जिसमें आप सोच रहे हैं नंबर कम आएंगे उस सब्जेक्ट में अच्छे आ जाएं, और बाद में नैया वही सब्जेक्ट पार लगा दें जिससे आप निराश होकर बैठे हैं, जिसके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं। कुछ नहीं पता, आज के ज़माने में जब से ये नॉर्मलाइजेशन प्रथा चली है बहुत अजीब अजीब रिज़ल्ट आते हैं। इसलिए आने वाले एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इसका तो रिज़ल्ट कब आएगा अभी बहुत टाइम है, तो उस टाइम को व्यर्थ ना करें। आने वाले एग्ज़ाम के लिए सभी विषयों को केंद्रित करके पढ़ाई करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।